Okay, students, very welcome to all of you. Now let's move on to the next type in limit. Right on problems of the form 1 raised to infinity. ऐसा लिखो आप problems of form 1 raised to infinity. Okay, and underline this. So now if you are having problems of these form 1 raised to infinity, इसमें एक ट्रिक यूज करना है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए of this type. So just write down that trick also and then we'll move on to the examples. Okay, चलिए लिखिए. If you are having limit x is tending towards a of fx to the power gx, limit x is tending towards a fx raised to gx रहेगा और प्रॉब्लम अगर इस फॉर्म का है 1 raised to infinity, then this will be equal to e raised to limit x is tending towards a of gx into bracket fx minus 1. So this is what we need to remember. So just put a box over this. ये आप नोट डाउन कर लो. So you can say this is the trick to evaluate the problem. ऐसे जो 1 raised to infinity वाले problems होते हैं वो लिमिट्स हम कैसे इवेल्युएट करेंगे. तो लिमिट x is tending towards a fx raised to gx रहेगा और 1 raised to infinity फॉर्म रहेगा, तो it will be written as e raised to limit x tending towards a of gx into bracket fx minus 1. Now let us take down some examples which are dependent on this. Okay, so let's continue with the same number. Question number 74. Limit x is tending towards 0. 3x square plus 2 upon 7x square plus 2 whole to the power 1 by x square. This is to be evaluated. 4 options are, write down. 1 by e raised to minus 2, 1 by e raised to 2, option C 1 by e, and option D minus 1 by e square. Please make a note of this question. चलो सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल. तो सबसे पहले जब आप लिमिट सॉल्व करते हो उसके पहले आपको आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट्स प्रॉब्लम किस टाइप का है. तो व्हेन आई पुट x is equal to 0 इनसाइड दिस ब्रैकेट, you'll observe 2 upon 2, तो 1 हो जाएगा, एंड 1 by 0 is nothing but infinity. तो अगर प्रॉब्लम 1 raised to infinity का फॉर्म है, only then we can apply this trick. ये जो रूल है ये तभी एप्लीकेबल है जब 1 raised to infinity है, कभी भी नहीं यूज कर सकते उसको. ओके, तो चलो लेट अस अप्लाई दिस रूल ओवर हियर. राइट, दिस विल बी फर्दर इक्वल टू, ये शॉर्ट ट्रिक है हमारा, तो क्या करेंगे, विल बी यूजिंग, तो दिस विल बी फर्दर इक्वल टू व्हाट, तो e raised to लिमिट x is tending towards 0. अभी फर्स्ट एग्जांपल है तो एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको. ये देखो ये fx है, ये जो पूरा ब्रैकेट है दिस इज fx एंड दिस पावर इज नथिंग बट gx. तो ये जो fx और gx है ना वो यहाँ पे डालना है राइट हैंड साइड पे. तो क्या मिलेगा, e raised to limit x is tending towards 0 of gx. So what is gx? gx is nothing but 1 by x square. ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट में क्या है fx minus 1, तो दिस इज fx. तो fx क्या है लिखो, तो इट इज 3x square plus 2 upon 7x square plus 2 minus 1. Close the bracket. तो एग्जाम्पल को हम ये ट्रिक के साथ कंपेयर करेंगे, ये रूल के साथ कंपेयर करेंगे. दिस इज गोइंग टू सेव अवर टाइम. ये टाइम सेविंग रिजल्ट है.
ठीक है. So now what we do is we take LCM inside this bracket quickly. So this will be further equal to e raised to limit x is tending towards 0 1 by x square remaining same. दोनों का LCM लेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 7x square plus 2. Now let us take LCM and simplify the numerator. तो जब हम LCM लेंगे तो 3x square minus 7x square, so that will give us nothing but minus 4x square plus 2 और minus 2 cancel हो जाएगा. Okay, so we'll be left out with only this remaining inside the bracket. अभी हर एक स्टेप शो नहीं करना है. अब हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि it is not at all necessary to show any step of LCM and all that. You skip that and write down directly. Now what will happen? ये लिमिट हमें जो e के पावर में है वो लिमिट हमें इवेल्युएट करना है स्टूडेंट. नाउ व्हाट वी डू, वी कैरी आउट द कैंसलेशन ऑफ x स्क्वायर. तो ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया. नाउ यू ऑब्जर्व आफ्टर कैंसलेशन ऑफ x स्क्वायर अगर आप x का वैल्यू 0 डालोगे, इफ यू पुट x इज इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर इज अ नॉन जीरो नंबर, तो डाल दो x का वैल्यू 0. तो दिस विल बी फर्दर इक्वल टू e रेज टू x का वैल्यू 0 डालेंगे तो न्यूमरेटर में -4 है एंड डिनोमिनेटर में वी आर हैविंग 2. तो व्हाट इज द आंसर? यू नो e रेज टू -2 इज द आंसर. e रेज टू -2 मींस इट इज नथिंग बट 1 by e square. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. प्रॉब्लम इज ओवर. ओके, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम सेविंग रिजल्ट. तो जब भी 1 by infinity 1 रेज टू इंफिनिटी के एग्जांपल्स है, 1 रेज टू इंफिनिटी के एग्जांपल्स है, तो यू कैन यूज दिस टाइम सेविंग रिजल्ट. एकदम जल्दी से हमारा काम हो जाता है. नाउ जस्ट गिव मी द क्लियरेंस. इज दिस प्रोसीजर अंडरस्टूड टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Please make a note of this solution. Then we'll move ahead. So please make a note of the next question, students. 75th. ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. What is question saying over here? If f is a function from real number to real number, be such that f of 1 का value is 3, f dash of 1 का value is 6, then we want to find out limit x is tending towards 0, f of 1 plus x upon f of 1 to the power 1 by x. ठीक है, अभी ये भी एग्जांपल आप देख लो. अगर आप x का वैल्यू 0 डालोगे तो f of 1 upon f of 1 is 1, और x का वैल्यू यहाँ पे 0 डालोगे तो 1 by 0 is infinity. So the problem is of the form 1 raised to infinity. So we are going to use this result for solving the problem. ठीक है, चलिए देखिए solution for the problem. So since this is 1 by infinity form, तो इसका equal to, इसका next step will be what? So it will be e raised to, लिखो limit x is tending towards 0, fx raised to gx. So what is gx over here? Gx is 1 by x. ब्रैकेट में देखो आप fx -1 है. fx मतलब ये पूरी चीज जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है. तो दिस इज नथिंग बट f of 1 plus x अपॉन f of 1 minus 1. देखो क्या होता है, लिमिट x is tending towards a gx ब्रैकेट fx -1 होता है. ठीक है, now we will be taking LCM inside this square bracket. स्क्वायर ब्रैकेट में हम LCM ले लेंगे. So this will be further equal to, write down, e raised to limit x is tending towards 0. This when I take LCM, this is going to be numerator हो जाएगा इसका f of 1 plus x minus f of 1 upon f of 1 multiplied by x. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम x into f of 1. ठीक है, to save time we can do this. स्टेप्स इंक्रीज नहीं करने हैं. वी डोंट हैव टू अननेसेसरी इंक्रीज द स्टेप्स. स्टूडेंट एलसीएम लिया, एट द सेम टाइम ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया. ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, अभी अगर x का वैल्यू आप 0 डालोगे, नाउ इफ आई पुट x इज इक्वल टू 0, तो यू ऑब्जर्व इन द न्यूमरेटर f of 1 minus f of 1, न्यूमरेटर 0 हो जाएगा. x का वैल्यू 0 डालोगे तो डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा. तो इट इज 0 by 0 फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म है. नाउ सिंस इट इज 0 by 0 फॉर्म,
we can apply L'Hopital rule to the bracket. तो ये जो E का पावर है ना, यहाँ पर हम L'Hopital rule अप्लाई करेंगे. ओके, तो चलो राइट डाउन फॉर योर रेफरेंस. applying L'Hopital rule. So several times we have applied this rule already. So this will be equal to e raised to limit x is tending towards 0 derivative f of 1 plus x का derivative will be f dash of 1 plus x into derivative of 1 plus x, तो 1 हो जाएगा, upon in the denominator f of 1 तो constant है, उसका derivative 0 हो जाएगा, upon x into f of 1 का derivative is nothing but f of 1 and the bracket closes. x का derivative 1 है, तो upon में नीचे 1 आएगा. Now let us substitute x is equal to 0, so this is nothing but e raised to x का value 0 डालेंगे, तो numerator is f dash of 1 upon f of 1 and these values are available with us. f dash of 1 का वैल्यू इसमें दिया हुआ है 6 और f of 1 का वैल्यू है 3, तो आंसर इज नथिंग बट e raised to 3. f dash of 1 is 6 by 3 सॉरी 3 दिया है तो 2 आएगा, e raised to 2. f dash of 1 का वैल्यू 6 दिया है और f of 1 का वैल्यू 3 दिया है, तो 6 by 3 2 आएगा, e raised to 2. So which option is the correct answer? Now option C is the correct answer. Problem is over. So we are using this property, या आप टाइम सेविंग रिजल्ट बोल सकते हो इसको, to evaluate 1 raised to infinity example. Okay, so please make a note of this. Problem is over. So next question, students. Limit m is tending towards infinity, cos of x upon m all to the power m. This is to be evaluated. Okay, chalo, let's write down the solution. Now, if you observe, it is of the form 1 raised to infinity. कैसे? m के जगह पे आप infinity डालो, so this will become x by infinity. Now 1 by infinity is 0 और cos 0 का वैल्यू होता है 1. तो ये जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है वो 1 हो जाएगा और m इंफिनिटी डालेंगे तो 1 रेज टू इंफिनिटी फॉर्म है ये प्रॉब्लम. तो यस वी कैन अप्लाई दिस. ओके, तो चलो लेट्स अप्लाई. यहाँ पे बहुत आपको अच्छे से ध्यान रखना है, दिस इज m टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, m. ठीक है, so write down this will be further equal to, इसका जो इक्वल टू स्टेप है, so this will be e raised to, write down, limit m is tending towards infinity gx. What is gx? So gx is nothing but m bracket fx minus 1. So what is fx? So it is cos of x by m minus 1. ठीक है, अभी थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे. राइट ऑन नेक्स्ट स्टेप, व्हाई दैट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. तो नेक्स्ट स्टेप आप लिखो e raised to limit m is tending towards infinity. Now this whole thing can be written as, इसको आप लिखो cos of x upon m minus 1 whole upon, ये जो m है इसको हम लिखेंगे 1 by m. उसका रीजन है, there is a reason behind it. Why so? अभी जब हम m का वैल्यू इंफिनिटी डालेंगे, ऑब्जर्व केयरफुली, जब हम m के जगह पे इंफिनिटी डालेंगे तो 1 minus 1, तो ये हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा 0 एंड 1 by इंफिनिटी, तो डिनोमिनेटर भी हो जाएगा 0. सो नाउ दिस प्रॉब्लम, ये जो पावर है, दिस बिकम्स 0 by 0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. एंड वी ऑल नो जब प्रॉब्लम 0 by 0 फॉर्म में या इंफिनिटी by इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, द सिंपल वे इज अप्लाइंग L'Hopital रूल. तो चलो लेट्स अप्लाई L'Hopital रूल ओवर हियर. यहाँ पे ये दोनों को हम L'Hopital रूल अप्लाई करेंगे, बट वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू m. जैसे हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेते हैं ना, क्योंकि वहां पे x टेंडिंग टुवर्ड्स होता है. अब यहाँ पे m टेंडिंग टुवर्ड्स है, तो वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू m. ठीक है, चलो राइट डाउन. तो दिस विल बी फर्दर इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप लिखिए, दिस इज इक्वल टू e raised to limit m is tending towards infinity. See, I'm taking different kinds of examples.
नाउ लेट अस टेक डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x by m. तो cos ऑफ x by m का डेरिवेटिव विल बी नथिंग बट माइनस साइन ऑफ x by m इनटू डेरिवेटिव ऑफ x by m. अच्छा, ये अभी मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिखा है d by dm of x by m. This is for your understanding. I have written just to show you that we are differentiating with respect to m. With respect to m डेरिवेटिव ले रहे हैं हम यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू m. तो 1 by m का डेरिवेटिव विल बी माइनस 1 by m स्क्वायर. क्लोज द ब्रैकेट. ठीक है, रूल है 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 by x स्क्वायर होता है. So similarly, we have done it in 11th standard also. 1 by m का डेरिवेटिव is minus 1 by m square हो जाएगा. Now we are supposed to write down this d by dm of x by m. तो यहाँ पे x तो constant है. We are differentiating with respect to m. So next step will be, देखो, this will be further equal to e raised to limit m is tending towards infinity. ठीक है, now what will happen? चलो ठीक है, माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, एम स्क्वायर कैन बी रिटर्न इन मल्टीप्लीकेशन. एम स्क्वायर आ गया मल्टीप्लीकेशन में. या चलो एज इट इज रख देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? रिटर्न माइनस, लेट अस कीप इट एज इट इज, माइनस साइन ऑफ एक्स बाय एम इनटू इसका डेरिवेटिव विल बी माइनस एक्स बाय एम स्क्वायर. ठीक है ना, माइनस एक्स बाय m स्क्वायर हो जाएगा. एंड दिस m स्क्वायर विल कम इन द न्यूमरेटर और ये इनटू m स्क्वायर ऐसा हो जाएगा. एंड एट द सेम टाइम वो जो माइनस साइन है, चलो ठीक है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस इज माइनस m स्क्वायर. ऐसा कर देते हैं हम, ये माइनस साइन है वहां पे. ठीक है, तो ये माइनस साइन पहले से था जो इसका डेरिवेटिव है, फिर इसका डेरिवेटिव लिया, वो माइनस साइन मिला और ये माइनस साइन. नाउ व्हाट विल हैपन? m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसल आउट. तो ये m स्क्वायर इस m स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया. नाउ पुट m के जगह पे इंफिनिटी डाल दो आप. तो दिस इज e रेज टू माइनस माइनस माइनस, तो माइनस साइन विल रिमेन सेम. दिस इज गोइंग टू बिकम साइन ऑफ 0 इनटू x. वहां पे x बच गया, यहाँ पे m के जगह पे इंफिनिटी डालेंगे, तो 1 by infinity is 0 and sin 0 itself is 0. तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बिकम e raised to 0 and anything raised to 0 is nothing but 1. तो कौन सा ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. प्रॉब्लम इज ओवर. सिंपली हमने लॉपिटल रूल अप्लाई किया है इस स्टेप के बाद, एंड वी हैव सिंप्लीफाइड व्हाटएवर इज पॉसिबल, और फिर हमने m के जगह पे इंफिनिटी डाल के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया. तो प्लीज डू नॉट रिमेंबर एज दिस वे कि 1 रेज टू इंफिनिटी 1 होता है. नो, ऐसा ट्रू नहीं है. 1 रेज टू इंफिनिटी इज नॉट एट ऑल इक्वल टू 1. वी हैव सीन इट इन द प्रीवियस एग्जांपल. अलग अलग वैल्यूज आते हैं. ये सिर्फ फॉर्म है 1 रेज टू इंफिनिटी. इट इज ओनली वन ऑफ द फॉर्म इन लिमिट्स. तो उसको कैसे सॉल्व करना है, दैट इज हाउ वी डू इट. ओके, so please make a note of this. Problem is over. So now let us move on to the next question. That is question number 77. Limit x is tending towards infinity. X square plus 5x plus 3 upon x square plus x plus 3 whole to the power x. This question was asked in AIEEE 2002. Is it 1 raised to infinity? Yes. तो ये यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 1 raised to infinity फॉर्म है ये. चलो नाउ अप्लाई एंड ट्राई टू टेल मी व्हाट इज द आंसर. अभी इंफिनिटी वाले प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, बट खाली सबसे पहले आपको ये रूल अप्लाई करना है. तो सॉल्व इट एंड ट्राई टू टेल मी द आंसर फॉर दिस. आई गिव यू अ टाइम ऑफ 2 minutes. हो गया कि प्लीज लेट मी नो, देन वी डिस्कस द आंसर. चलो, एनीवन एल्स गॉट द आंसर फॉर दिस? ओके, चलो, डजंट मैटर. देख लीजिए सॉल्यूशन आप, आपने जो लिखा है
उसे आप कंपेयर कर लीजिए। तो e रेस टू, तो e रेस टू लिमिट, ठीक है, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी gx इंटू ब्रैकेट fx, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 माइनस 1 gx ब्रैकेट fx माइनस 1। अभी यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है स्क्वायर ब्रैकेट में, तो दिस विल बी फर्दर इक्वल टू e रेस टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी x रिमेनिंग सेम। अच्छा, जब हम एलसीएम लेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो डिनोमिनेटर इज x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3। नाउ जस्ट सिंप्लीफाइंग, क्विकली टेल मी द न्यूमरेटर, सिंप्लीफाइड फॉर्म बताओ मेरे को, क्या बचेगा न्यूमरेटर में? 4x. Absolutely correct. We will be left out with only 4x in the numerator. अभी वो LCM दिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, it's just a waste of time. Now this x gets multiplied, वो भी आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ अभी मैं, e raised to limit x is tending towards infinity, ये जब x मल्टीप्लाई हो जाएगा मिलेगा 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। Now see, it is tending towards infinity वाला प्रॉब्लम है, so what will be the answer, you know, e raised to, न्यूमरेटर में क्योंकि x is tending towards infinity है, न्यूमरेटर में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 4 और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो आंसर इज e raised to 4। so which option is correct? Yes, option B is the correct answer. recollect limits at infinity में हमने किया था, so whenever it is limit x is tending towards infinity, fx upon gx रहेगा, where fx and gx are two polynomial, then answer is coefficient of the highest power of x. recollect, coefficient of highest power of x in the numerator upon coefficient of highest power of x in the denominator. coefficient of highest power of x in the denominator, यही हमारा शॉर्ट ट्रिक था, टाइम सेविंग रिजल्ट था। recollect when we have done infinity वाले प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है और यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो e raised to 4 इज द आंसर, ऑप्शन बी, प्रॉब्लम इज ओवर। फंडा वही है, खाली ये चीज हम एक्स्ट्रा अप्लाई कर रहे हैं e raised to, बाकी जो लिमिट इवैल्यूएशन का प्रोसीजर है दैट इज एग्जैक्टली सेम इन एवरी प्रॉब्लम। कहीं पे लॉपिटल रूल अप्लाई कर रहे हैं, कहीं पे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं, ऑल दैट, यू नो। चलो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 77 इज ओवर। So let's try the next question, students. Question number 78. If p is equal to limit x is tending towards 0 plus 1 plus tan square root x to the power 1 by 2x दिया है, but we want to find out the value of log p. तो सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले p इवेल्युएट कर लेते हैं, फिर उसका लॉग फाइंड करेंगे। लॉग p चाहिए ना, तो पहले p जो लिमिट दिया है, पहले लिमिट को इवेल्युएट कर लेते हैं, फिर इसको लॉग ले लेते हैं। This question was asked in JEE Mains 2016. चलो सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। तो p कौन से फॉर्म का है? तो इट इज 1 raised to infinity। जो p दिया है दिस इज ऑफ द फॉर्म 1 raised to infinity, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो p इज इक्वल टू, देखो p इज इक्वल टू e raised to लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, सिर्फ 0 लिखोगे तो भी चलेगा, पर 0 प्लस दिया है, 0 प्लस लिखो, 0 प्लस gx ब्रैकेट fx माइनस 1, दिस माइनस 1, तो क्या मिलेगा? 1 प्लस tan स्क्वायर रूट x माइनस 1, ऐसा मिलेगा हमें। वी आर यूजिंग दिस टाइम सेविंग रिजल्ट। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? देयरफॉर p इज इक्वल टू e रेज़ टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, वी आर लेफ्ट आउट विथ 1 by 2 तो कांस्टेंट है, ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट आउट विथ tan स्क्वायर रूट x, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट tan रूट x द होल स्क्वायर है,
tan square root x means it is tan root x the whole square upon x. या ऐसा करते हैं, ये जो x है इसको भी ऐसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं. This x is also nothing but can be written as root x का square to save time. Why unnecessary waste time? Tan square root x is tan root x the whole square, और ये जो x है ये root x का square है 1/2 as it is. अब देखो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला tan थीटा बाय थीटा 1 हो जाएगा, है ना. तो ये तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको. Write down p is further equal to e raised to limit x is tending towards 0 plus 1/2 remaining same, and this will be written as tan root x upon root x the whole square. 0 प्लस के लिए है, 0 प्लस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये चीज 1 हो जाएगी tan थीटा बाय थीटा. तो दिस इज गोइंग टू बिकम 1. तो ये क्या हो जाएगा, p का वैल्यू इज e रेज टू हाफ. p का वैल्यू इज e रेज टू हाफ. ये तो 1 हो गया लिमिट वाला पार्ट, बट हमें थोड़ी p का वैल्यू चाहिए. वी डोंट वांट वैल्यू ऑफ p. व्हाट वी वांट इज वैल्यू ऑफ log p. तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ log p? क्विकली टेल मी. half. Yes, half. So log p का वैल्यू है log of e raised to half, which is obviously half. ठीक है, बेस अंडरस्टूड है, log का e रहेगा. It is always a natural base. So log p का वैल्यू is 1/2. Option C is the correct answer. Problem is over. तो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड कि अगर प्रॉब्लम्स ऑफ 1 रेज टू इंफिनिटी के प्रॉब्लम्स अगर एग्जाम में आए, ऑब्वियसली दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स ओनली कम इन एंट्रेंस एग्जाम. थियरी एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं. तो हाउ टू इवैल्यूएट द पिक्चर इज क्लियर टू ऑल. यस Yes, sir. ओके. चलो, तो विद दिस वी फिनिश ऑफ with the problems based on 1 raised to infinity. Now next let us move on to the next type now. Okay, but before that please note down this.